So welcome back guys, this is Ashwin Rawat from Ashwin Tech Mind YouTube channel, and today in this video we will see that how you can download and configure your Eclipse IDE for Java servlet development. So without wasting any time, let's get started. So first of all, you need to go to your Google Chrome browser and type here Eclipse JE download for Windows 10. If you are on some other operating system, then you can download the Eclipse JE for respective operating system. So press enter now. Now click on the first link that appears. It might be from eclipse.org, which is the official site of Eclipse developers, and it is showing me that this package was released on 9/24/2010 and a newer package is available. So we have to download the newer package which is available. So click on here and wait for some time. Now scroll down, and as you can see here, Eclipse IDE for enterprise Java and web developers, which is of 517 MB. You need to download this Eclipse IDE, and there are a lot of Eclipse IDEs for Java developers, for C and C++ developers, but you have to download the Java enterprise version for Eclipse. Okay, so which is of 517 MB. Remember this, you need to download the enterprise version of Eclipse. Okay, so this is the download button. Click on the download button to download this. So let's click on Windows x86 64, and your download will start immediately, I think. Wait for some time, and now you need to download this Eclipse IDE. So click on this download button. So I'm going to click on this download button. So now as you can see, the downloading will start at saltily, and it is showing me that donate to the Eclipse community, but there is no thing to donate them. Just I'm just watching my download because I don't want to re-download this again, because I have already installed Eclipse JE version in my PC. So जब आपका गाइस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, सो आपको उस समय सी ड्राइव में जाना है, एंड देन यू नीड टू गो टू प्रोग्राम फाइल्स. सॉरी, यू डोंट हैव टू गो टू प्रोग्राम फाइल्स, आपको सीधा जाना है यहाँ पे डाउनलोड्स पे and search here for Eclipse JE 2021 zip file. So this is the zip file in my case, and you need to extract that zip file. So click on that, right click on that and click on extract here. After clicking on extract here, the Eclipse JE version will start extracting. Now wait for some time. और जब आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये मुझे बता रहा है कंफर्म फाइल रिप्लेस. इट इज शोइंग मी दैट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड द Eclipse वर्जन, Eclipse JE वर्जन ऑफ Eclipse. So there is no need to extract this again in my case. बट आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना ही करना है, क्योंकि बिना एक्सट्रैक्ट किए तो बात यहाँ पे बनेगी नहीं. तो अब उस फोल्डर को आपको इस डाउनलोड फोल्डर में जाके ढूंढना है, जो कि होगा कुछ नीचे होगा, Eclipse होगा यहाँ पे कहीं पे. तो ये रहा. तो जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो Eclipse JE 2021 वाला फोल्डर आपको कुछ इस प्रकार से विजिबल होगा, और इस पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर Eclipse वाले फोल्डर के अंदर जाना है, और इसके अंदर आपको कुछ फाइल्स दिखेंगे, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कुछ ड्रॉप-इन्स, कुछ फीचर्स वगैरह वगैरह, एंड यू नीड टू क्लिक ऑन eclipse.exe to launch the Eclipse application. So just click on eclipse.exe and it will start immediately. So this is the 2021 version of Eclipse. So I am going to run this Eclipse IDE. Wait for some time. Now it is saying me that select a directory as workspace. So you need to select the workspace. You can select the workspace according to your need. Okay, so let's select the workspace, but first of all we need to create a separate folder for that purpose. So go to File Explorer, go to
any drive that you want to make your workspace. I am going to my G drive, which is my favorite drive. Create a new folder here and write here a name such as Eclipse workspace 1, or you can say workspace 2. Now open this folder. So this folder is in G drive. Now go to your Eclipse and you need to browse the folder. Click on browse button and now you again go to G drive and search here for Eclipse. Where is Eclipse here? Eclipse workspace 2. Click on this folder and now click on select folder. So it will open the Eclipse workspace and now click on launch button. So inside the Eclipse workspace, the metadata folder is already created here. Now open this folder and here you can see the .plugins, .lock and version.ini. This is not important at all. Minimize this and wait for Eclipse IDE to start. So now as you can see, the Eclipse is finally open in front of me. So maximize this screen first and go to your file and we will see the complete overview of this Eclipse IDE. तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो कि है एक ओवरव्यू। इन्होंने पहले से एक वेलकम पेज यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को ब्राउज कर सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि आप कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, क्या इसमें एडिटर्स हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्लिप्स इंस्टॉल हो चुका है, पर अभी भी हमने इन्वायरमेंट सेटअप नहीं किया है। तो अगर हमें इन्वायरमेंट यहाँ पे सेटअप करना है तो पहले मुझे यहाँ पे अपना वाईफाई से कनेक्ट होना पड़ेगा, और वेट फॉर सम टाइम जब तक मैं अपने वाईफाई से कनेक्ट होता हूँ। तो गाइज अब मैं अपने वाईफाई से दोबारा कनेक्ट हो चुका हूँ और एक्लिप्स को तो हमने यहाँ पे डाउनलोड भी कर लिया और इंस्टॉल भी कर लिया है। अब जरूरत है हमें एक सर्वर की, जो कि होगा हमारा अपाचे सर्वर, और अपाचे सर्वर को भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करेंगे। जस्ट गो टू गूगल क्रोम एंड सर्च हियर फॉर ओपन ए न्यू टैब एंड सर्च हियर फॉर अपाचे टॉमकैट डाउनलोड। सो सर्च हियर अपाचे टॉमकैट 10 download. Now press enter and click on the first link that might be from tomcat.apache.org. Click on this link and it will redirect you to the home page of Apache Tomcat. So now from this you can download the Apache. So there are some binary distribution for the version 10.0.7. You can download the various versions from here. You can download the Tomcat 9.0 to you can download Tomcat 8.5, you can download Tomcat 7.0, whatever you want. But I'm going to show you how you can download 10.0.7. So you can click on any link. So I'm going to click on 64-bit Windows zip. So click on this because my PC consists of 64 bits. And you can see that 12.5 MB is the size of this Apache Tomcat 10. I'm not going to download this once again because I have already installed Apache Tomcat in my system. Go to File Explorer once again and go to this PC. Now you need to go to downloads and search here for Apache Tomcat. So where is Apache? Let's search. So guys, हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया Apache Tomcat 9.0.45 को। तो ये मेरे पास जो वर्जन है वो है, और इसको अब हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। और यह मेरे पास दूसरा वर्जन भी है अपाचे का टॉमकैट वाला, जो कि है 10.0.5। तो यहीं कहीं इसको भी आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और इसका एक फोल्डर अलग से यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास है अपाचे टॉमकैट 9.0.45 का फोल्डर, और एक और फोल्डर यहाँ पे मेरे पास है जो कि है 10.0.5 का। ओके गाइज, अब यहाँ पे इसकी लाइब्रेरीज में जाते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारी जार फाइल देखने को मिल जाएगी, और जिसमें से हमें यहाँ पर सर्वलेट API.jar को इंक्लूड करना होगा। सर्वलेट API.jar के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले इसको मिनिमाइज कर लीजिए और जाइए अपनी एक्लिप्स IDE में, और यहाँ पर आपको विंडोज पे जाना है और यहाँ पर आपको शो व्यू पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्वर पे क्लिक करने है। तो लेट्स क्लिक ऑन सर्वर्स, और यहाँ पर आपको अपने सर्वर को यहाँ पे ऐड करना है आसानी के साथ। तो अब तक हो जाना चाहिए था उस विंडो को ओपन, तो अभी नहीं हुआ है तो फिर से करते हैं। शो व्यू पे जाइए और सर्वर्स पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। वेलकम पेज को सबसे पहले हम यहाँ से हटाएंगे, और ये मुझे बता रहा है कि नो सर्वर्स आर अवेलेबल एंड क्लिक दिस लिंक टू क्रिएट अ न्यू सर्वर। तो हम इस पे क्लिक करेंगे
और नए सर्वर को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सर्वर है वो है अपाचे। तो आपको यहाँ पे अपाचे पे जाना है और ये सारे सर्वर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपने अगर टॉमकैट का 10 वाला वर्जन डाउनलोड किया है या कहीं इंस्टॉल किया है तो आपको इस पे क्लिक करना है। मेरे केस में यहाँ पर मेरे पास टॉमकैट 10.0 वाला वर्जन है, सो आई हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक। सो क्लिक ऑन दिस एंड click on next button. Here you can change the name of your server, but I'm not going to change my name. So here you need to specify the Tomcat installation directory. So click on browse and now go to your this PC, go to C drive, go to downloads, and now here find the Apache Tomcat directory, which is Apache Tomcat 10.0.5. Now click on select folder and click on next button. Now nothing to configure here and you can click on now finish button. So click on finish button and now you can see Tomcat version 10.0 server at localhost, but now it is currently stopped, so हमें इसको start करने की जरूरत है। How you can do that? Let's see. Just right click on this and click on start. So I have started the server. Let's wait for it. So it is showing me that server is started and synchronized. बट हाउ वी कैन चेक दैट कि हमारा जो सर्वर है वो सच में चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसने बता तो दिया कि स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, मुझे अभी वाईफाई से कनेक्ट होने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर। और सीधा जाते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर, एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एकदम ऑफलाइन मोड में हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लोकलहोस्ट 8080। तो देखते हैं ये मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है। ये मुझे रिजल्ट दे रहा है HTTP status 404 नॉट फाउंड। इसका मतलब ये है कि हम अपाचे टॉमकैट के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपाचे टॉमकैट 10.0.5 का नाम भी लिखा हुआ दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं एक बार और देखते हैं कि कौन से पोर्ट नंबर पे ये वर्क कर रहा है। तो आप इसको राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज पे जाइए, लेकिन जी नहीं, यहाँ पे हमें कोई भी पोर्ट नंबर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आपको इस पर डबल क्लिक करना है और ये अब हमें पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन दे देगा। जी हाँ, ये हमें पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप चाहे तो इस पोर्ट नंबर को चेंज कर सकते हैं। अगर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास माइस्क्यूएल सर्वर है या फिर कोई अदर टाइप का सर्वर है, बहुत सारे सर्वर हमारे पास अवेलेबल है, अगर उनमें से कोई सर्वर है और वो करंटली रन कर रहा है तो उसको ऑफ कर दीजिए। और ऑफ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पोर्ट नंबर आपको टॉमकैट का चेंज करना पड़ेगा। ऐसा आपको क्यों करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यदि आपको कोई दूसरा सर्वर चल रहा है इसी पोर्ट पे, तो आपका टॉमकैट सर्वर इसी पोर्ट पे नहीं चलने वाला है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका एक दूसरा सर्वर है जो कि 8080 पर चल रहा है, तो और उसके बाद अगर आप टॉमकैट वर्जन 10.0 को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, वो स्टार्ट होगा ही नहीं। एक बार आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो पोर्ट नंबर है वो 8080 है। वी कैन चेंज दिस, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली। सो अगर आपके केस में परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है तो पोर्ट नंबर चेंज कर लीजिए, सब कुछ आराम से वर्क कर लेगा। ठीक है, तो एक स्टॉप कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कर लिया है। तो अब ये मुझे इसका स्टेटस बता रहा है स्टॉप्ड। अब हम वापस जाएंगे गूगल क्रोम में, एक नया टैब ओपन करेंगे और दोबारा से यहाँ पे टाइप करेंगे लोकलहोस्ट 8080 और करंट टाइम पे ये मुझे दिखाएगा कि दिस साइट कांट बी रीच्ड। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सर्वर है वो सच में अब ऑफ हो चुका है। और जब हमारा सर्वर ऑन होगा तब वो हमें क्या दिखाएगा, वो हमें दिखाएगा कुछ इस प्रकार का कि अपाचे टॉमकैट 10.0.5। ओके, तो यहाँ पर हमने आज सीख लिया कि कैसे हम एक्लिप्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम टॉमकैट सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे अपने एक्लिप्स के लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात सच कहूँ तो आपको बताना चाहूँगा, और वो बात ये है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के दौरान या कहीं इस पूरी सीरीज को बनाने के दौरान हम एक्लिप्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम नेटबीन्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आई थिंक नेटबीन्स इज मोर रिलायबल एंड कंफर्टेबल देन एक्लिप्स। व्हाई? क्योंकि जब हम एक्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं ये हमें काफ़ी बिल्ट इन फीचर जरूर देता है, लेकिन जब से मैं इस वर्जन में आया हूँ, इस एक्लिप्स के नए वाले वर्जन में जो कि जेई वाला है, तब से मुझे काफ़ी इसमें बग देखने को मिल रहे हैं। सच एज जब भी हम कोई लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो
कोडिंग लिखते हुए कुछ लाइन अजीब सी सजेस्ट कर लेता है, और इसमें स्पेसेस का कुछ भी मतलब प्रॉपरली एकदम सही नहीं है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक एकदम अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू नेटबीन्स। तो हम इसको यूज़ करने वाले नहीं है, हम करेंगे यूज नेटबीन्स को। तो आई होप कि आपके पास नेटबीन्स हो, और नहीं होगा तो हम किसी और वीडियो में आपको बता देंगे कि नेटबीन्स कैसे करेंगे। और एक और बात बता देते हैं यहाँ पे कि अगर आपका एक्लिप्स ढंग से वर्क कर रहा है तो आप उसी में वर्क कीजिए, क्योंकि इतना तो मैं मानता हूँ कि एक्लिप्स के पास ज़्यादा फीचर्स हैं एज कम्पेयर टू नेटबीन्स, लेकिन कुछ बग के कारण मुझे एक्लिप्स को यूज़ यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है, मुझे हटाना पड़ रहा है एक्लिप्स को कि हम एक्लिप्स यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ये मैंने आपको पूरा एक्लिप्स का सेटअप का टूर करा दिया। कैसे इसमें वेब प्रोजेक्ट बनाएंगे ये अगली वीडियो में जानेंगे। इसमें बस मैंने आपको एनवायरनमेंट सेटअप करके बता दिया है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।